ATACS is an advanced towed artillery gun system, which is designed and developed by ARDE, Pune. And then this is one of the best systems in the world, which DRDO has developed. Its max range is 48 kilometers. It has got special features like 25 barrel capacity and then 52 caliber system, and it can fire in zone 7. There is no gun system in the world which can fire in zone 7. So that is the reason why we can get this kind of long range of 48 kilometers. So, sir, do you have any plan to upgrade the ammunition of this gun? We are working as of now. I mean, this gun can take all the standard ammunitions, but at the same time, we are working to develop the advanced the ammunition systems also. The existing ammunition is unguided ammunition, wherein it is that the gun system will aim towards the target, and then ammunition will be fired, and then the target will be destroyed. But in the case of guided ammunitions, which we are working on as of now, ion GPS and laser guided ammunitions, currently our work has started, wherein the accuracy will be better to 10 meters accuracy, and then wherein we can reduce the collateral damage. That is the futuristic ammunition we are working. And also we are going to work on ramjet based ammunition, wherein it will have its own propulsion system, wherein it will have, and also it will be guided. So guidance as well as the ramjet, both together will be a part of the ammunition, which will increase the range and it will have higher accuracy. So Indian Army ordered for the services? Indian Army has ordered for the services these ATACS. 307 numbers have been ordered placed. Contract is signed in the month of March 2025. And for these 307 numbers, the order is split in the ratio of 60 and 40 between Bharat Forge Limited Pune and Tata Systems Bangalore. And these guns have to be supplied in a duration of 5 years. So is it totally indigenous? It is indigenous to the percentage of 75%, and then there is still 15% import content is there. But this import content at the earliest we are planning to indigenize at the earliest. Can you know about the difference between Bofors and ATAC guns? Bofors is I can tell you that it's a lower range system. It's a 39 caliber system, and this is a 52 caliber system. So naturally you will have higher range, better performance. And since all the systems are indigenous, high-end technologies we have used, so one of the best gun systems in the world. So we can say it will play the best role in the services? Definitely, yes. This is an asset to Army, and then we are proud that we have developed the system to our Indian Armed Forces, and we hope such kind of systems we do develop for our own country and then serve this nation. ये 155-52 कैलिबर की गन है, आर्टिलरी गन है, जिसमें हम करीब जोन 7 BMCS जोन 7 की कैपेबिलिटी है इसमें फायरिंग में, जिससे हम लोग करीब PRB सेल के साथ 48 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर पाते हैं, जो कि दुनिया में इस तरह का पहली बार हुआ है कि कोई आर्टिलरी गन 155 कैलिबर की आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर की रेंज दे पाती है। और ये पूरा जो इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट है ये इंडिजिनस है, जैसा आप सिस्टम में देख सकते हैं। इसमें सामने की तरफ मजल ब्रेक लगा हुआ है, इसके बाद बैरल, फिर रिकॉइल सिस्टम, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटायर अपर स्ट्रक्चर ऑफ एनी आर्टिलरी गन इज मेड फ्रॉम द बैटरी ऑपरेटेड। ऊपर की पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस समय बैटरी ऑपरेटेड है, और जो इंजन से हमेशा चार्ज भी होता है। सर, पहले गन्स देखे जाए उनसे कितना ज्यादा डिफरेंट है ये बोफोर की बात कही जाए, उससे अगर उनको कंपैरिजन करा जाए तो कितना? जी, इसमें रेंज, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और रेट ऑफ फायर के टर्म में दिस इज फार सुपीरियर देन दी प्रीवियस गन्स विच यू हैव जस्ट मेंशन्ड। तो इस हमको अपने जो एग्जिस्टिंग गन्स हैं, पहली बात तो मोस्टली गन्स वेर इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पे बनाई गई थी कंट्री में। अब हमने इसको पूरा इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया है DRDO के लैब्स के साथ और जो इंडियन डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ।
कितने क्रू मेंबर्स इसको ऑपरेट करने में लगते हैं सर? पूरी टीम के बारे में अगर जानना चाहेंगे। इसमें टोटल 7 क्रू लगते हैं। सबका एक वेल डिफाइंड रोल है। ये बैटरी कमांड पोस्ट के थ्रू ऑपरेट होती है, तो 7 क्रू इसको ऑपरेट करते हैं। सर रेडी टू यूज है? जी हाँ, भी ये गन जो आपके सामने है ये कंप्लीट हमने करीब 2 साल ड्यूरेशन में यूजर ट्रायल, डीजीक्यूए ट्रायल, EMI/EMC और MET किया है। सो ये फायरिंग गन है जो आपके सामने देख रहे हैं। जी सर्विसेज में से इंडियन आर्मी ने इसको आपको ऑर्डर दे रखा है, जिसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। पूरे इसके सभी ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अभी इंडियन आर्मी ने 360 एटैक्स और 327 नंबर ऑफ द गन टोइंग व्हीकल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विथ आवर 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 60 and 40%, जो करीब 5 साल के अंदर ये पूरी डिलीवरी दोनों हमारे पार्टनर्स इंडियन आर्मी को करेंगे। और ARD का रोल है इसमें। 18 guns from each PA, ARD will be responsible for doing the complete quality assurance of these products so that tomorrow there is no problem in the smooth flow production. सर एम्यूनिशन जो यूज हो रहा है इसको अपग्रेड करने का भी कोई प्लान है आप लोगों का? जी, एम्यूनिशन अपग्रेड 3 पार्ट में चल रहा है हमारे पास। एक हमारा बोरलेट सेल है जिसको हम लोग नबलेस भी बोलते हैं, जो करंट सेल से ज्यादा रोबस्ट है, ज्यादा लीथल है और वो कंप्लीट इंडिजिनस डिजाइन है। वो करीब आज से 2 साल के अंदर इंडियन आर्मी में आ जाएगी। उसके बाद एक पैरेलली हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है गाइडेड सेल का, 155 गाइडेड सेल, जिससे हमारी एक्यूरेसी और रेंज दोनों फर्दर इनहांस हो जाएगी। और थर्ड हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है 155 मिलीमीटर रैमजेट प्रोजेक्टाइल विद गाइडेंस सिस्टम, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेंज करीब 85 to 90 किलोमीटर विद द गाइडेंस रहेगा। तो ये हमारा फ्यूचर अपग्रेड ऑफ दी अम्यूनिशन के हमारे प्रोजेक्ट्स पैरेलली लॉन्च हो रहे हैं। ये कब तक सर हो सकते हैं कुछ? जैसा मैंने बताया कि बोरलेट सेल करीब 1.5 से 2 साल के अंदर, गाइडेड सेल करीब 4 से 5 साल के अंदर और रैमजेट प्रोजेक्टाइल जो कि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो करीब 6 से 7 साल के अंदर इंडक्ट हो सकता है। सर क्या और देशों ने भी आपसे कांटेक्ट किया या आप लोगों का प्लान है इसको ट्रांसपोर्ट करने का, कहीं और देशों को भी इसको प्रोवाइड कराने का, सप्लाई करने का? जी, हमारे एक पार्टनर ने इसको पहले ही हमारे फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट किया हुआ है और उनके पास बहुत सारे कंट्रीज से क्वेरीज आ रही हैं, तो वो अभी अपना प्रोडक्शन लाइन उसके हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट दोनों मीट हो सके। क्या कॉस्ट रहने वाला है सर सप्लाई का? इस गन की जो आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो करीब गन यानी एटैक्स और टोइंग व्हीकल को मिला के अराउंड 21 करोड़ है पर यूनिट।